A microprocessor is an electronic component that is used by a computer to do its work. It is a central processing unit on a single integrated circuit chip containing millions of very small components including transistors, resistors, and diodes that work together. Microprocessor helps to do everything from writing to searching the web. Everything a computer does is described by lots of precise instructions. And microprocessor carry out these instructions at incredible speed, many millions of times a second. Microprocessors were invented in the 1970s for use in embedded systems. The majority are still used that way in such things as mobile phones, cars, military weapons, and home appliances. Some microprocessors are microcontrollers, so small and inexpensive that they are used to control very small products like flashlights and greeting cards that play music when you open them. A few especially powerful microprocessors are used in personal computer. So let's discuss on some of the simple steps, the working mechanism of microprocessor shortly. Like other central processing units, microprocessors use three steps commonly called fetch, decode, and execute. In the fetch step, an instruction is copied from the computer memory into the microprocessor. In the decode step, the microprocessor figures out what operation the instruction is meant to do. In the execution step, this operation is performed. Operation can be very simple, like adding two numbers or moving some data from one place to another, or complicated, like copying a series of letters and numbers called a string from one place in the computer's memory to the different place. So here is the short description about microprocessor. If you want to know further. So, good morning, student. So, today we will start our sixth unit. Okay. So, sixth unit, which is based on the microprocessor. Our fifth unit, I will complete after the sixth unit. Okay. So, sixth unit, which is based on the microprocessor, it having the some type topics like as the database bus, address bus, control bus, then microprocessor based system. Okay, then functional unit of microprocessor, ALU. Okay, so here the concentrate on the ALU unit. Okay, so just a minute. So Govinda, are you there? Yes, ma'am. So shall we, you start the microprocessor concept? Yes, ma'am. ओके सो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना, शायद स्क्रीन होगी ना आपकी. Yes, ma'am. ओके सो विद इन 5 मिनट्स में पहले एक स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट करना. ओके Yes, ma'am. ओके गुड. सो दीज आर द टॉपिक ऑफ 6 यूनिट. तो इसके जो भी स्टार्टिंग है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसमें डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस क्या होता है, ये आज गोविंदा आपको बताने वाला है. ठीक है. सो उसके पहले मैं एक शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर बता देती हूँ ताकि आपको भी लिंक लगेगी. ठीक है. सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर? इट इज नथिंग बट दिस सीपीयू. जो भी हम सीपीयू बोलते हैं, मतलब जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो ओके, लेकिन उसके अंदर जो सीपीयू, अब हम एज अ कंप्यूटर इंजीनियर है, सो हम सीपीयू मतलब हम क्या चेक करते हैं एज अ प्रोसेसर. ठीक है. हम कंप्यूटर को मतलब ज्यादातर जो हमारा फोकस है वो हमेशा प्रोसेसर, क्योंकि अगर प्रोसेसर अच्छा है मतलब ही कंप्यूटर अच्छा है, क्योंकि जो भी प्राइस रहती कंप्यूटर के,
अभी नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको कंप्यूटर का नहीं पता, लेकिन हम जो टेक्निकल पर्सन है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सो हमें पता होता है कि कंप्यूटर की प्राइस किसके बेस पर डिपेंड है। क्योंकि आपको भी पता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसको इतने पैसे नहीं लगते। पैसे जो भी ज्यादा लगते अगर होते तो वो किसको लगते, प्रोसेसर अगर अच्छा है तो पैसे ज्यादा लगते। ठीक है, सो जो भी प्रोसेसर है वो यहाँ पर प्लेस होता है। मदरबोर्ड जहां तक आपने सुना अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं बता देती हूँ। जो भी सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जो रेक्टेंगल बॉक्स आता है, अभी तो उसकी भी साइज छोटी है, अगर लैपटॉप की वजह से तो वो भी बॉक्स नहीं दिखाई देता, राइट। लेकिन मदरबोर्ड ये कंसेप्ट अभी तक तो कॉमन है। सो मदरबोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर सब टाइप की चिप्स अवेलेबल होती है, जिसमें एक मेजर चिप्स अवेलेबल होती है, इट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, Processor. राइट। सो ये इस टाइप की दिखाई देती है। सो ये जो भी चिप्स है इसका काम क्या, एक्चुअली ये सच में कंप्यूटर है। क्योंकि अभी मोबाइल भी हमारा एक स्मॉल कंप्यूटर है, हमारा टैबलेट भी एक कंप्यूटर वर्क करता है। ये सब में ये प्रोसेसर फिक्स है। सो ये प्रोसेसर की जो भी साइज है, वो अभी मोबाइल में तो उसकी साइज थोड़ी छोटी बनती है, लेकिन ये थोड़ी जनरल साइज है जहां पर सीपीयू में ये प्लेस होती है। सो इसके अंदर पूरा मटेरियल है, मतलब इसको हार्ड बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जो सॉफ्टवेयर पार्ट में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट में ओएस को हार्ड बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर का ब्रेन इज नथिंग बट द माइक्रो प्रोसेसर, और एक स्मॉल चिप में अवेलेबल होता है, और इसके अंदर ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और अदर कुछ जो भी डिवाइसेस ये इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, देन अभी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइप्स की डेफिनेशन अवेलेबल जहां पर माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्लेन किया है। सो माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर दो वर्ड है, माइक्रो एंड प्रोसेसर। सो माइक्रो मतलब स्मॉल, सो ये स्मॉल चिप में अवेलेबल, इसके इसलिए इसका नाम भी दिया है माइक्रो। और प्रोसेसर मतलब क्या, प्रोसेसर मतलब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं। सो प्रोसेस के लिए यहाँ पर ये डिजिटल में हम कर रहे हैं, सो बाइनरी नंबर में ही ये प्रोसेसिंग होगी, 0 एंड 1 में। एंड अगर इसमें मैनिपुलेशन हो गए, डेटा मैनिपुलेशन करेंगे हम, ठीक है, सो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसिंग करने का जो भी डिवाइस है, इट इज कॉल्ड द प्रोसेसर। सो इसीलिए ये पूरा वर्ड है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, so one more definition of the microprocessor. So microprocessor is a multi-purpose programmable device that accepts digital data as an input, process it according to the instructions stored in its memory and provide the result as output. So जो भी अभी कंप्यूटर में करे, अभी मैं भी जो भी प्रोसेस करूँ, मैंने पीपीटी ओपन किया, ये किया, ये सब चीजें क्या कर रहा है, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। ठीक है, so it is the actually the example of digital logic. Okay, so इसमें जो भी इनबिल्ट जो भी हम प्रोसेसिंग होगी तो वो इसके लिए बाइनरी नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर अगेन, यहाँ पर अगेन एक डेफिनेशन है कि इट इज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, इज कैपेबल ऑफ टू मैनेज द ऑल वेरियस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन. Microprocessor can capable to execute other operations such as the computational activities like as the addition, subtraction, internal processing device. Okay, so communication, input, output management, these all operation performed by the microprocessor. So this is the basic block diagram of microcomputer. ठीक है, so जो भी आपका कंप्यूटर रहेगा, so लैपटॉप, जो भी आपका मोबाइल भी स्मॉल कंप्यूटर, राइट। तो ये कंप्यूटर में ये फिक्स एक फॉर्मेट है, एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें इनपुट डिवाइस रहेंगे और एक माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेंगे। ठीक है, सो और यहाँ पर रहेगा एक मिनट, यहाँ पर मेमोरी यूनिट। सो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट वो क्या है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एरे। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, अभी आप देख सकते हो, इसके एरो देखो। सो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस के इनपुट से जो भी डेटा आएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, देन मेमोरी में स्टोर करना, क्योंकि मेमोरी में डबल डायरेक्शन एरो, और आउटपुट को सेंड करना, ये सब जो भी कंट्रोलिंग है वो कौन करने वाला है, माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। सो इसके अभी हिस्ट्री क्या है, कैसे आया एक माइक्रो प्रोसेसर। सो इसकी जो स्टार्टिंग है 1972 में इंटेल ने ये स्टार्ट किया था।
सो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि अभी अगर आपने सुना अगर होगा कि जो भी कंप्यूटर अगर लेते हो आप, तो आप देखते हो कि ये 32 बिट या 64 बिट है, सो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड वहां पर बढ़ता है, ठीक है। सो ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो वो 1972 में। उसके बाद अगर डिटेल अगर देखने हैं इसके, तो यहाँ पर मैंने लिंक भी दिए, लेकिन ये आगे एक टेबल है जहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो कि 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट इस टाइप का जनरेशन उसका हुआ था, ठीक है। वन स्टेप बाय स्टेप ऐसे ये बढ़ा था। सो स्टार्टिंग में जहाँ पर आई थिंक मुझे गोविंदा भी बोला कि वो 8085 आई थिंक एक्सप्लेन करने वाला है उसके रिलेटेड। Yes, ma'am. सो यहाँ पर ये दीज आर दी माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर अगर आप नंबर देख रहे 404, 8085, दीज आर नथिंग बट दी प्रोसेसर नंबर। सो यहाँ पर जो बेसिक जहाँ तक जो भी फेमस हुआ था 8085 एंड 8086, दीज आर दी फेमस माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि अभी तक आपने कोई भी माइक्रो प्रोसेसर ये बुक अगर लेते हो तो उसके अंदर 8085 या 8086 इसी के डायग्राम्स मिलेंगे, इसी का बेसिक। मैम हाँ बोलो। मैम बिकॉज वो सबसे बेसिक है और वो सीखने के बाद आप कौन सा भी प्रोसेस से हैंडल कर सकते हो, इसलिए वो सबसे बेसिक होता है, इसलिए वो रहता है हर एक बुक में। राइट राइट। सो यहाँ पर सब आगे के जितने भी प्रोसेसर एक्चुअली सच में बेस्ड ऑन दिस 2 प्रोसेसर है। सो दिस ऑल अबाउट द प्रोसेसर हिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी चेंजेस होती है कि मेमोरी की एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या है, अभी व्हाट इज मीन बाय एड्रेसिंग, वो सब अगर आगे आता है तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो क्लॉक, दीज आर दी पिंस, ये सब यहाँ पर क्या है, इसका एक टेबल है जिसमें दिया। लेकिन मतलब यहाँ पर बताने का मीनिंग इतना है कि कैसे स्टार्ट हुआ 4 बिट, 8 बिट, 16 देन 32 बिट में बहुत ज्यादा टाइम हुआ था, लेकिन उसमें जो भी मेमोरी एड्रेसिंग स्पीड के ऊपर उस टाइम ज्यादा काम हुआ था, इसलिए 32 बिट कंटिन्यू था। उसके बाद 64 बिट आया था, ठीक है। देन एक मिनट, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसर 8085। ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पिन डायग्राम है 8085 के। सो ये एक चिप में कनेक्शन कैसे करना है, अगर कंप्यूटर वहां पर डिजाइन होता है, सो यहाँ पर कनेक्शन अगर देने हैं, सो होल्ड, वीसीसी, रीसेट, सोल, एसआईडी, ये पिन का सब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। ये सब पिन मतलब यहाँ पर है, और उसको कनेक्शन कैसे करना, तो ये डिपेंड ऑन दिस पिन, ओके। सो आगे का जो भी आगे का या अभी आज गोविंदा आपको एक्सप्लेन करने वाला है कि माइक्रो प्रोसेसर या उसके रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, बेसिक्स एंड एड्रेस एंड बस कंट्रोल बस एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी, ओके। सो गोविंदा मैं स्क्रीन शेयर कर, मतलब वो सिक्योरिटी का जो भी ऑप्शन है वो मैंने अलाउ किया। सो प्लीज कंटिन्यू, स्टार्ट Yes, करो, ma'am. ओके। मैम वो आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करो ना। हेलो हाँ गोविंदा, हेलो ऑडिबल है, स्टार्ट। मैं जस्ट हाँ यस मैम गोविंदा जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट प्लीज, अभी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते तो वहां तक ठीक था, लेकिन आपका ही फ्रेंड है तो प्लीज रिस्पॉन्स करो, कुछ क्वेरी है तो आप पूछो, ठीक है। अगर उसको नहीं आया, मुझे भी नहीं आया आपका क्वेरी का आंसर, तो हम बाद में आपका आंसर जरूर देंगे। सो प्लीज इंटरैक्टिव रहो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो पूछो, ठीक है। कंटिन्यू गोविंदा। Okay, ma'am. यस मैम। हे एवरीवन, माय नेम इज गोविंदा चाष्टवे। मैं आपको आज माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताने वाला हूँ। माइक्रो प्रोसेसर बोले तो क्या होता है कि जो मैं अपन कंप्यूटर में देखते हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, शिफ्ट और जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ना, वो कंप्यूटर का एक माइंड होता है कि जिससे वो करता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। आज मैं आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। अगर ये आ जाता है तो आप दुनिया में से कौन सा भी माइक्रो प्रोसेसर उठा लो, आप उसका एक बेसिक मतलब नॉलेज जान लोगे। और उस टाइम का जब का माइक्रो प्रोसेसर, तब का ये सबसे मतलब फेमस था और बहुत ही
ज्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि बेसिक टाइप ये सीखा तो आगे आप कुछ भी सीख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर में। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोसेसर सिस्टम आर्किटेक्चर। टिपिकली प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये इतने सारे प्रोसेसर मतलब क्या होता है, उसमें एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, कंट्रोल लॉजिक एंड रजिस्टर्स। बाद में मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, इनपुट आउटपुट। सीपीयू के अंदर एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें अरिथमेटिक प्रोसेस, लॉजिक प्रोसेस, ये सब होते हैं उसमें, वो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। कंट्रोल लॉजिक में वहां पे मैक्सिमम क्लॉक कंट्रोल कैसे करते वो टाइप का है सब। और रजिस्टर्स, इसमें जितने टाइप ऑफ रजिस्टर्स है वो देखने अपने को। बाद में इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज यूनिट्स, जैसे इनपुट आउटपुट कनेक्ट होते हैं कुछ, तो बीच में इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, ये देखो, एक होता है एड्रेस बस, दूसरा होता है डेटा बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस। ये आपको आगे जाके बताता हूँ मैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 8085, इट स्टोर्स 8 बिट डेटा। ये 8 बिट डेटा स्टोर करता है, इसलिए इस माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इसमें 8 बिट का एक्यूमुलेटर भी होता है। परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका जो एएलयू यूनिट है ना, वो ये सब कंट्रोल करता है। टेस्ट फॉर कंडीशन, सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हर इस जैसे प्रोसेसर को अपन कुछ इनपुट देते हैं और उसको आउटपुट देते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ता है, वो ये सब करता है। और स्टोर टेम्परेरी डाटा इन रैम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैम ने अभी बताया था आपको कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 8085, इसमें डेटा बस होती है, इंटरनल बसेस होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, और 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, 2 स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। एक्यूमुलेटर इज द क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट फेवरेबल रजिस्टर होता है कि हर प्रोसेस में अपने को एक्यूमुलेटर का यूज करना पड़ता है। फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये सब स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर 8085 रजिस्टर का, सॉरी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। फर्स्टली इसमें 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच एल, और सभी 8 बिट होते हैं। एक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, मतलब वो हर प्रोसेस में यूज होता है। इसमें एक फ्लैग रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है 16 बिट का, और प्रोग्राम काउंटर होता है 16 बिट का, और दो बस होती है जो इनपुट आउटपुट में कनेक्शन देती है। तो डेटा बस ये बाई डायरेक्शनल होती है, देखो ये दो डायरेक्शन को है, देखो डेटा बस, देखो ये आवाज ठीक से नहीं आ रही। 16 बिट। हेलो गोविंद, आपका आवाज नहीं, गोविंद आपका आवाज है ना इन बिटवीन ऐसे ब्रेक होता है, प्रॉपरली नहीं आ रहा है। थोड़ा अभी थोड़ा मैम अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ अभी आ रहा है, बोलो। यस मैम, यस मैम। इसमें ना 8 बिट एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर का जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है, और 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच एल, और 16 बिट स्टैक पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है 16 बिट। इसमें 2 टाइप की बसेस होती है, डेटा बस एंड एड्रेस बस। डेटा बस कैसे होता है पता है क्या? 2 टाइप, मतलब वो बाई डायरेक्शनल है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर को भी कनेक्ट करती है, और प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट को भी मतलब डेटा देती है। जैसे एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई टीचर होगा, अपना जो टीचर होता है क्लासरूम में, वो कभी एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो ज्यादातर बच्चे बात ही नहीं करते उनके साथ में, वो टाइप का एक लेक्चर में स्टार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं और स्टूडेंट को वो करना पड़ता है, तो वो है एड्रेस बस टाइप, सिंगल ओनली यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ टीचर से स्टूडेंट को सुनने को मिलता है, स्टूडेंट टीचर को ज्यादा बोल नहीं सकते। वैसे 16 बिट का 16 लाइंस का एक एड्रेस बस होता है, और डेटा बस होता है 8 लाइंस का। डेटा बस कैसे होता है पता है? जैसे एक फ्रेंडली टीचर है कोई अपने क्लास में, नॉन टेक्निकल एग्जांपल उसका, एक फ्रेंडली टीचर है अपने क्लास में, और फिर बच्चे कैसे 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं,
मतलब बच्चे भी सर को बोल सकते हैं सर यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हुआ है, और टीचर भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं आपका ये ऐसे गलत, मतलब ना क्या टू वे कम्युनिकेशन होता है उसको। ये बाई डायरेक्शनल, जैसे इसमें डेटा बस से इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर को भी डेटा जाता है और प्रोसेसर से भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को जाता है। नेक्स्ट, रजिस्टर्स। देखो मैंने आपको बोला था, देखो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर B C D E H L, they can also combine as a register pairs to perform 16-bit operation। जब अपने को बड़ी ऑपरेशन करनी होती है 16 बिट्स की, तो ये रजिस्टर अपन कंबाइन करते हैं, P और C की कॉम्बिनेशन जो भी करते हैं, बाद में D और E की भी कर सकते हैं और HL की भी कर सकते हैं। रजिस्टर्स आर प्रोग्रामेबल, कल मैम ने बताया था आपको, प्रोग्रामेबल मतलब वेरिएबल्स, मतलब अपन चेंज कर सकते हैं ऐसे वो टाइप। और इस एक्यूमुलेटर इज द मोस्ट IMP कंसेप्ट इन प्रोसेसर, क्योंकि एक्यूमुलेटर 90% ऐसे प्रोसेस होते हैं कि एक्यूमुलेटर जिसमें अपने को यूज करना पड़ता है। और एक्यूमुलेटर का हमारे टीचर्स ने जो बताया था कि एक्यूमुलेटर ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा एक्यूमुलेटर ये वर्ड आने के बाद में दिमाग में एक लाइन फिट रहना कि accumulator always stores the result is always stored in accumulator, and first bit of the operation is always stored in accumulator। ये दो लाइन्स तो पक्का दिमाग में रहना ही। फर्स्ट बीट ऑफ ऑपरेशन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन, मतलब A प्लस B करते हैं तो जो A होगा वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, मतलब फर्स्ट बीट ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। और रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, जो रिजल्ट आएगा A प्लस B का रिजल्ट आया C, वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। इसलिए accumulator is the very IMP concept and it is used for arithmetic and logic operation। The result is always stored in accumulator। देखो वहां पे भी लिखा हुआ है, result is always stored in accumulator। program counter, program count, this is the register। ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, दोनों स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, stack pointer and program counter। program counter is a register that used to control the sequencing of the execution of instruction। मतलब जैसे अगर देखो अपने को एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेता हूँ, आप दिन भर का शेड्यूल है आपका कि अरे मेरे को 9:30 बजे ये लेक्चर करना है, 10:30 बजे वो लेक्चर करना है, तो अभी जो चल रहा है वो प्रोसेस छोड़ के आगे का भी एक बार अपन दिमाग में रखते हैं कि अरे 10:30 बजे अपने को ये प्रोसेस करना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर भी ऐसा ही है प्रोसेसर में, जैसे प्रोसेसर को जो अगली प्रोसेस करनी है उसका डेटा, उसका डेटा नहीं, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। मतलब मुझे प्रोसेसर को देखो, मतलब अपने को 4 प्रोसेस साइमल्टेनियसली करने, पहले अपने को कुछ लिखना है, उस पर टाइप करना है, बाद में अपने को साथ में गाने भी सुनने हैं, तो उसका जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है कि आगे जो प्रोसेस करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में ऑलवेज सेट होता है। This is the register always holds the address of the next instruction। अगली इंस्ट्रक्शन में अपने को करना क्या है वो हमेशा इसमें स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। Since it holds an address, it must be a 16-bit wide। 16 बिट का इसीलिए है क्योंकि इसमें एड्रेस स्टोर होता है। Next, stack pointer। Stack pointer is also 16-bit register that is used to point into memory। ये मेमोरी को पॉइंट करता है। और स्टैक बोले तो एक याद में रहना हमेशा, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। The memory, this register points to the special area called as stack। The stack is an area of memory used to hold data that will be retrieved soon। मतलब ये भी वही टाइप का है कि उसमें ना अपन डेटा स्टोर करते हैं, थोड़ा नहीं अपने को, जैसे मतलब एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं अपन कि एक पेज अपन ने लिख के कहा पे, तो भी मतलब समझो ऐसा हुआ, देखो एक पेज है हमने मतलब लिखने वाले हो पेज अपन, लेकिन उस पेज पे कुछ तो लिखा अपन ने और बाकी वो पेपर अगर कुछ काम का है तो अपन ने कहा पे तो भी चिपका दिया आगे, समझो मेरे को बुक में एक पेज वो काम का है तो मैंने उसको वो बुक में चिपका दिया। तो वैसे ही इसमें भी डेटा स्टोर होता है और जब जरूरत होती है तो प्रोसेसर उसको निकाल लेता है। यही काम होता है स्टैक का, स्टैक पॉइंटर का। The stack is usually accessed in the last in first out। LIFO, इसको इसलिए बोलते हैं LIFO, last in। जो जैसे मेमोरी लोग अपने लोकेशन होते हैं वो इसमें नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं,
जो लास्ट को इन होता है, मतलब जो ऊपर की साइड से इन होता है वो पहले ही ऊपर की साइड से बाहर निकाला जाता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. 8085 and its buses. This the 8085 is an 8-bit general purpose microprocessor that can address 64K byte of memory. 64 into K मतलब 1000, जिसे K ने क्या है, किलो जैसे बोलते हैं अपन, 1000. 64 into 1000 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर कर सकता है ये. इट हैज 14 पिन, हाँ ये 40 पिन आईसी है. मैम ने आपको बोला होगा अभी वो आईसी डायग्राम दिखा हुआ, उसमें 40 पिन का आईसी होता है ये. और 5 वोल्ट वीसीसी होता है इसका, 5 वोल्ट इसको लगता है सप्लाई. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज. ये एमसीक्यू के पॉइंट है, एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकते हैं. जैसे 8085 को 74 इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन सेट 74 का होता है, फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज की होती है, 40 पिन आईसी है, और यूजेस पावर सप्लाई 5 वोल्ट का होता है. The pins on the chip can be grouped into 6 groups: address bus, data bus, control and status signal, and power supply and frequency, externally initiative signal, and serial input output ports. Address bus. Address bus has 8 signal lines, A8 to A15. वो जो पिन डायग्राम है ना, उसमें A8 to A15 जो पिन्स होती है वो एड्रेस लाइन एज एड्रेस लाइन यूज करते हैं अपन, और वो यूनिडायरेक्शनल होती है. मैंने बोला ना, वो एग्जांपल दिया था देखो मैंने, वन वे कम्युनिकेशन, जैसे सिर्फ टीचर बोलेंगे अपन सुनेंगे, वो टाइप का. मतलब सिर्फ प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस को ये दे सकता, सिग्नल दे सकता है उससे, लेकिन इनपुट आउटपुट सिग्नल उस एड्रेस बस के इससे कुछ कर नहीं सकते. एड्रेस दे सकते, सिर्फ प्रोसेसर एड्रेस देता है इसको, इनपुट आउटपुट डिवाइस को. और द other 8 address bits are multiplexed with the 8-bit data bits. मतलब जो बाकी के जो 8 बिट होते हैं वो डेटा बस के लिए यूज किए जाते हैं, मल्टीप्लेक्स किए. हाँ, so the 8AD02 AD7 are the bidirectional and serve as A0 to A7 and D0 to D7 at the same time. मतलब AD0 एड्रेस डेटा बस बोलते हैं इसको, और ये बायडायरेक्शनल होती है. मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर को भी डाटा जा सकता है और प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी जा सकता है. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दीज लाइंस कैरी द एड्रेस बिट्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट, देन ड्यूरिंग द लेट पार्ट्स of the execution they carry the 8 data bits. In order to separate the address from the data, we can use the latch to save the value before the function of the bits changes. Ma'am? हाँ बोलो ना. हो गया? Yes ma'am, हो गया ma'am. हो गया? Yes ma'am. Okay. So anyone? आपको कुछ क्वेश्चन है? जितना इसने लिया, जितना गोविंदा ने बताया, इसके रिलेटेड किसी कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? ओके, सो थैंक यू गोविंद. हाँ ओके, सो अच्छा बताया गोविंदा आपने. थैंक यू मैम. हाँ ओके, मतलब थैंक अच्छा यू मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. नहीं, एक्चुअली ये बाकी सबको भी है, लेकिन वो आपने एक्सेप्ट किया और आपने लिया. ओके, अच्छी बात है. मैंने सबको बताया था. इससे क्या होता है कि आप एटलीस्ट थोड़े बहुत टॉपिक खुद से पढ़ते हो, क्योंकि आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे पीपीटी बनानी है. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टाइम लगा होगा, टाइम गया होगा, लेकिन इससे आपको ही सीखने के लिए मिलता है. सो मैं चाहती हूँ जब भी स्टूडेंट, बाकी कोई भी स्टाफ या कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको कोई बताता है कि आप ये टॉपिक एक्सप्लेन करोगे क्या, ये प्रेजेंट करोगे क्या, यहाँ पर बोलोगे, तो प्लीज वहां पर एक्सेप्ट करो और वहां पर वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो और बोलो. ठीक है? ओके, सो वंस अगेन थैंक यू गोविंदा. ओके, सो अब मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ. जो भी हमारा टॉपिक है कंटिन्यू करना है वो. ठीक है? तो अभी तक आपको आइडिया आई होगी कि हमें पढ़ना क्या है, कि हमें प्रोसेसर पढ़ना है
और अभी जो गोविंद अभी स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई, इसके बाद गोविंदा ने 8085 के अंदर क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो एक्सप्लेन किया था, राइट। सो यहाँ पर जो जो भी होता है एएलयू में क्या है, ये रजिस्टर उसने बताया था, उसने प्रोग्राम पॉइंटर क्या होता है ये बताया था, यहाँ पर जो भी बसेस है वो इसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके डिटेल में भी आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 6 में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जैसे कि अगर माइक्रो प्रोसेसर ये अगर सब्जेक्ट होता तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में होता कि इसके टेम्पररी रजिस्टर का वर्किंग क्या है, इसमें कितने बिट एक्सेप्ट हो गए, कब इसको यूज करना है ऐसा। लेकिन अभी आपको क्या है कि सिंपल दीज आर दी रजिस्टर, टोटल कितने रजिस्टर है, 8 रजिस्टर है, देन 16 पॉइंटर है, मतलब थोड़ा बहुत ओवरव्यू है, इन डिटेल नहीं है बहुत, ठीक है। जैसे ये जो भी प्रोसेसर की जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए ये 14 पिन डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 8085 ये, और यहाँ पर तो ए नंबर दिया है, तो ये क्यों दिया है कि ये अगेन एक नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है, 8085 एंड 8085A। तो इसमें लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर 8085 ये ए ऐसा नंबर है। अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि राइट डाउन द अबाउट द आइडियल माइक्रो प्रोसेसर, तो उस केस में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। आइडियल माइक्रो प्रोसेसर के टाइम आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी, या एक्सप्लेन द आइडियल माइक्रो प्रोसेसर, या एक्सप्लेन द माइक्रो प्रोसेसर, सो उस केस में ये डायग्राम ड्रॉ करनी, या कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, important points in microprocessor. So these are the important point of microprocessor: ALU, control unit and register array. And this is the block diagram of microcomputer, ठीक है। सो ये डायग्राम कब ड्रॉ करनी है, अगर आइडियल माइक्रोप्रोसेसर के बारे में आता है, या प्रोसेसर कहाँ लोकेट होता है वो अगर एक्सप्लेन करना है, तो उस केस में आप ये डायग्राम क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब जो भी इम्पोर्टेंट माइक्रोप्रोसेसर और सीपीयू रीड्स ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड इट डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट इट। सो अगर माइक्रोप्रोसेसर, एक मिनट, सो माइक्रोप्रोसेसर क्या वर्क करता है, यहाँ पर जो भी माइक्रोप्रोसेसर है वो क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर नथिंग बट दिस सीपीयू। सीपीयू कैसे वर्क करेगा, पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले क्या करेगा, वो रीड करेगा। रीड कब करेगा, जब उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन पहले वो फेच कर लेता है, सेव कर लेता है। जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर में ये दिया, टाइप कर रही हूँ, सो ये जो भी टाइपिंग है, यहाँ पर जो भी वर्ड है बाद में आपको डिस्प्ले देते हैं ना। सपोज मैंने हेलो ये वर्ड टाइप किया यहाँ पर कीबोर्ड से, सो उस टाइम क्या होगा, पहले ये वर्ड हेलो का जो भी वर्ड है, सो हेलो वर्ड पर मैं कीबोर्ड पर प्रेस करते तो उस टाइम उसके बैकग्राउंड में अलग कोड जनरेट होता है, वो पहले सेव किया जाता है। सेव करने के बाद उसको डिकोड मतलब अभी मैंने एच प्रेस किया तो वो एच क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है 101 फॉर्मेट में, ठीक है। सो वो ये काम कौन करता है, डिकोड का ये काम होता है। एंड देन अगेन अगर आउटपुट को डिस्प्ले करना है तो वो कौन से फॉर्म में होता है, जो भी मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है वो 101 फॉर्मेट में नहीं होता, वो भी कौन से फॉर्मेट में होता है, अगेन नॉर्मल जो भी इंग्लिश लाइन उसी फॉर्मेट में। सो हेलो वर्ड मैंने जैसे हेलो वर्ड टाइप किया, उसके बाद वो 101 फॉर्मेट में सेव होगा, और जब भी वो अगेन कंप्यूटर मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा तो वो अगेन क्या होगा, अगेन डिकोड होगा, और क्या डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पर हेलो ये वर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले फेच की जाती है, मतलब स्टोर की जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसको डिकोड किया जाता है कि उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। अगर मूव इंस्ट्रक्शन है, स्टोर इंस्ट्रक्शन है, सो स्टोर क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका पहले डिकोड करते हैं उसका यूजिंग मीनिंग, एंड देन क्या होता है उसको एग्जीक्यूट करते। अगर सपोज सेव करना है तो सेव करने का काम होता है, देन अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है। सो ये साइकिल में प्रोसेसर एक्चुअली वर्क करता है, फेच डिकोड execute, again fetch decode execute, okay। So it process the data as required in the instruction, okay,
the processing is in the form of arithmetic and logical operation. So processing कौन से, एक तो arithmetic में होगा या logical operation होगा. The data is retrieved from memory or taken from as an input device, and result of processing is stored in memory or delivered to an appropriate output device. Okay, and all as per the instruction. So यहाँ पर क्या होगा, जो भी डेटा है वो रिट्राइव, एक तो मेमोरी से डेटा रिट्राइव करेगा और जो भी यूजर डेटा देगा वहां से रिट्राइव होगा, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग का जो भी रिजल्ट होगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद वो अगर आउटपुट डिवाइस है तो वहां पर भी डिस्प्ले होगा, जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, कोई अगर ऑडियो स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट है, उस केस में वो डिस्प्ले होगा, कोई प्रिंटर स्टार्ट है तो प्रिंटर की तरफ देना, मतलब जिस टाइप का भी आउटपुट डिवाइस है वहां पर भी डेटा जाएगा और अगर उसी टाइम स्टोर भी होता है, क्योंकि आपको भी पता है आप जो भी डिस्प्ले करे जो मॉनिटर पर, वो चीजें बैकग्राउंड में सेव भी होती है. ठीक है. So these are the important part of the microprocessor जहाँ पे डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. सो इनका एक्चुअल काम है कि जो भी डेटा है वो ट्रैवलिंग का काम, या डेटा भी यहाँ पर क्या है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. सो ये जो भी ये जो भी बस है इसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे गोविंदा ने भी बताया कि जहाँ पर एड्रेस बस इसकी वन डायरेक्शनल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल डायरेक्शनल है यहाँ पर कंट्रोल बस. सो एड्रेस बस का काम क्या है कि अगर सपोज कोई भी डेटा है वो कौन से भी मेमोरी से आएगा या बाहर से आएगा इनपुट डिवाइस से, सो ये डेटा यहाँ पर इस बस से आएगा. एड्रेस बस से क्या होगा, अगर मुझे डेटा कौन से लोकेशन पर सेव करना है, कहाँ पर सेव करना है, या एड्रेस बस से वो डेटा वहां पर क्या होगा, सेव होगा. एंड कंट्रोल बस से क्या होगा कि इनपुट है, आउटपुट है या मेमोरी है, ये कंट्रोलिंग करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल बस. अभी इसके आगे अगेन डिटेल में पढ़ने वाले कि एड्रेस बस भी अगेन डिटेल में है, डेटा बस भी अगेन डिटेल में है एंड कंट्रोल बस भी अगेन डिटेल में. मैंने एक रफली आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा. So what is meant by data bus? So data line that provide a path for moving data among system model. ठीक है. So data line और data bus का use क्या है, to provide the path for moving data among the system model. So it may consist of a 32, 64, 128 or more separate lines. So यहाँ पर इतनी lines हो सकती है, 32, 64, 120. So इसका मीनिंग क्या आएगा, इतना डेटा एट अ टाइम मूव होगा. 32 बीट, अभी आपको बीट का मीनिंग पता है, बीट मतलब सिंगल बीट, 0 या 1, तो 32 बीट एक तो डेटा ट्रैवल हो सकता है, 64 बीट या 120. सो इसी के बेस पर इसकी अगर साइज बढ़ती 120, इसके आगे ऑल अगर साइज बढ़ती तो इसी के आगे हम बोलते हैं कि ये प्रोसेसर फास्ट है. प्रोसेसर फास्ट है मतलब क्या, उसकी जो भी बसेस की जो भी साइजेस है ट्रैवलिंग करने की वो अगर ज्यादा बढ़ती तो हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रोसेसर फास्ट है, या उस वो मतलब इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है ऐसा. सो द नंबर ऑफ लाइन डिटरमाइन हाउ मेनी बिट्स ऑफ अ डेटा, एक मिनट, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम. सो इस लाइन का मीनिंग क्या है, अभी मैंने बताया कि कितने एट अ टाइम डेटा एट अ टाइम ट्रांसफर होगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये फर्स्ट, और एक बात, ये जो भी स्मॉर्ट MP लिखा है तो देखो ये मैक्रो प्रोसेसर का सिंबल है, यूपी, लेकिन ये ऐसे माइक्रो वर्ड है, यूपीएस है, तो इसको शॉर्ट में मैक्रो प्रोसेसर अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर 8 बिट डेटा बस है. ठीक है. सो यहाँ पर कितना डेटा ट्रांसफर होगा, 8 बिट का. सो ये बाय डायरेक्शनल एरो यहाँ पर दिखाया है, ये बाय डायरेक्शनल है और ये भी बाय डायरेक्शनल है. सो दोनों सिर्फ अलग अलग वे से दिखाए. ओके. सो लेस देन 1 मिनट है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके. तो इसके बाद हम एड्रेस बस देखेंगे, कंट्रोल बस. ओके. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है,